बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हवाले से। उसमें हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। तो इस सिलसिले में हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं अपना सिस्टम से। तो व्हाट इज सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम पे जाने से पहले हम इस बात को क्लियर करते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है? द टर्म सिस्टम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। कहाँ से आया है? सिस्टेमा से आया है। लैटिन वर्ड्स है सिस्टेमा। सिस्टम इंग्लिश जबान का लफ्ज है, ये वहां से निकला है। होल compound of several parts are member system. Literary composition. मजीद इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं a system is a set of interacting or interdependent components parts forming a complex whole. मजीद इसको हम सिस्टम को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं जी the term system may also refer to a set of rules that govern structure or behavior. Alternatively, and usually in the context of complex social system, the term is used to describe the set of rules that govern structure or behavior. तो ये क्या था? ये सिस्टम की तारीफ थी कि सिस्टम क्या है। उसके बाद हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि सिस्टम का आगाज कहाँ से हुआ। तो इसमें हमारे पास दो नाम है जिसमें फ्रेंच फिजिक्स था, माहिर फिजिक्स था निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नाट, और एक बायोलॉजिस्ट था लुडविग वॉन बर्टलान फाय। ये जो है ना, इन्होंने सिस्टम का नाम इस्तेमाल किया और उन्होंने सिस्टम के बारे में वजाहत की। तो किस तरह से वजाहत की? In the 19th century, the French physicist Nicolas Leonard Sadi Carnot, who studied thermodynamics, pioneered the development of the concept of a system in the natural sciences. In 1824, he studied the system which he called the working substance, typically a body of water vapor in steam engine, in regard to the system ability to do work when heat is applied to it. तो ये सिस्टम जो है ना, वहाँ से शुरू हुआ 1824 में। यानी यूं कह लें कि ये जो स्टीम इंजन की ईजाद हुई तो उसमें उसने ये लव सिस्टम इस्तेमाल किया, या सिस्टम की टर्मिनोलॉजी वहाँ पे इस्तेमाल हुई। उसके बाद द बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बर्टलैंड फे 1901-1972, इसका जो है ना ये तारीख पैदाइश और डेथ है, became one of the pioneers of the general system theory. In 1945, he introduced model principles and laws that apply to generalized system or their subclasses. Irrespective of their particular kind, the nature of their components, element, and relation or forces between them. Environment and boundaries. System theory views the world as a complex system of interconnected parts. One scope a system by defining its boundary. This means choosing which entities are inside the system and which are outside. Part of the environment क्या कहता है जी? System theory views the world as a complex system of interconnected parts. One scopes a system by defining its boundary. This means choosing which entities are inside the system and which are outside, part of the environment.
one can make simplify representation models of the system in order to understand it and to predict or impact its future behavior. अब हम आते हैं जी नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सिस्टम. दो किस्म के सिस्टम है, नेचुरल और ह्यूमन मेड. नेचुरल सिस्टम क्या है? जैसा कि ये डे एंड नाइट का सिस्टम है, यूनिवर्स का सिस्टम है, सुबह शाम होती है जी. ये क्या है? ये इसके अलावा भी बेशुमार मिसालें नेचुरल सिस्टम की दी जा सकती हैं. और दूसरा होता है जी ह्यूमन मेड सिस्टम. तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? देयर आर नेचुरल एंड ह्यूमन made design system. Nature system may not have an apparent objective, but their behavior can be interpreted by whom as purposeful by an observer. यानी जो नेचुरल सिस्टम है वो मौजूद होते हैं और उनको हम ऑब्जर्व करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बयान कर सकते हैं. Human systems are made to satisfy an identified and stated need with purpose that are achieved by the delivery of wanted outputs. There must be related. They must be designed to work as a logical entity, one unit independent. Otherwise, they would be two or more distinct systems. Open systems have input and output flows representing exchange of matter, energy or information with their surroundings. तो ये सारा कुछ जो था ये हमने सिस्टम के बारे में बताया कि व्हाट इज सिस्टम. अब हम आते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है. पॉलिटिकल सिस्टम मीनिंग्स. पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? The political system is a biological phenomena in which a human body works in a mechanized form. The heart circulates blood to the organs of the whole body. All organs of the body have their special function to perform. ये हम पॉलिटिकल सिस्टम की वजाहत कर रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस में ये जो सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने बायोलॉजी से लिया है. जिस तरह से एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर सिस्टम पाया जाता है, इंसान के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत से दूसरे सिस्टम हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है. तो ये सिस्टम एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंसान के बारे में बताते हुए ये सिस्टम थ्योरी इस्तेमाल की है. और पॉलिटिकल साइंस में ये जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो सिस्टम थ्योरी है ये हमने बायोलॉजी की नकल करते हुए या बायोलॉजी को हमने उनका जो थीसिस था उसको हमने पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया है. तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी वजाहत करते हुए हम ये बता रहे हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम की परफॉर्मेंस किस तरह से होती है. इफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज नॉट रिसीव द ब्लड प्रॉपरली और रेजिस्ट इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, द होल सिस्टम ऑफ द बॉडी विल बी डिस्टर्ब. In the same way, the political system has different structures and function, and every structure has its subsystem that is assigned specific function to do it. It may be authoritative assigned functions. Each society must have a political system in order to maintain recognized procedure for allocating values, resources in large complex societies. Many decisions may be made about the duties and responsibility of citizens and also about the rights and privileges. If the society is to be orderly, people must obey the rules that are made. Even in stateless societies which had not developed formal central institutions were seen having some kind of decision making and rule making process, which were dominated by some members. As societies become wealthier and more complex, political system develop and grow more powerful. यानी इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं
कि सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हर सोसाइटी के अंदर मौजूद है, हर स्टेट के अंदर मौजूद है, चाहे वो स्टेट डेवलप्ड है या वो अंडर डेवलप्ड उसको हम कह सकते हैं, या वो डेवलपिंग स्टेट्स है। वहाँ जैसा भी है, यानी हम ये कह सकते हैं, ये आगे मजीद इसकी हम वजाहत करेंगे कि किस तरह से सिस्टम की कितनी अकसाम है, ये सिस्टम किस तरह से परफॉर्मेंस के लिहाज से फिर इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि सिस्टम हर सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होता है। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी अपने अंदाज में तारीफ की है। तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम, अब पॉलिटिकल सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये इसकी सादा तरीन डेफिनेशन है। अब पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। डेविड ईस्टन मशहूर ये पॉलिटिकल थिंकर है, फिलोसफर है, साइंटिस्ट है, ये क्या कहता है? डेविड ईस्टन सेज दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। इसके बाद गैब्रियल ऑलमंड एंड जेम्स कोलमैन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन टू बी फाउंड इन ऑल इंडिपेंडेंट societies which perform the function of integration and adaptation by means of legitimate physical compulsion. मजीद इसको वजाहत करते हुए हम कह सकते हैं political system is collectivity of political structure, that is government, association, that is political parties, and organization performing rules based on set norms and goals, like maintaining internal order, regulating foreign relations, and providing security from external forces. It is also described as a collectivity of political institutions and association with administer the society through power, compelling conformity to the existing system of authority, and which work on the basis of some principles and procedures. Max Weber क्या कहता है? Max Weber has explained it as organization that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given टेरिटरी, दैट इज स्टेट। यानी स्टेट के अंदर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर अपनी लेजिटिमेट पावर्स का फिजिकली यूज कर रही है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सिस्टम को डिफाइन किया और पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे।